A very good morning, everyone, and welcome to this special session that we are doing today based on the political scenario in Bangladesh currently. And for this session today, we have with us Professor Dr. Amrish Saxena, our international affair expert. I would like to invite Sir here to start the session without wasting any more seconds or minutes. Please welcome Professor Dr. Amrish Saxena. Okay, so as Garima has already told you, and you also know the topic of today's session, and not only that I will be talking about whatever is happening in Bangladesh. Most of the things are in media, and I believe those who follow news or who follow as to what is happening in our surroundings, they must be knowing about this. But also, whatever is happening in Bangladesh, the impact of that in India, and how India will meet those challenges which has been posed by the affairs in Bangladesh. So that's the main thing, because whenever we talk about any national international issue, the first thing that we must understand as to how we are affected as a nation. So, before starting my lecture or my talk, I would like to know initially to understand as to how many of you, or how amongst you know as to what is happening in Bangladesh. So that will help me to articulate whatever I'm going to tell you. Yeah. Any one of you. Anything that you know about Bangladesh in general and this particular scenario which has happened today. Yeah. सर बेसिकली वहाँ पर कोटा के चक्कर में थोड़े इश्यूज चल रहे थे कि द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ 71 वॉर देयर चिल्ड्रेन एंड अदर पीपल विल गेट द बेनिफिट्स एंड ऑल्सो द backward classes or the women's will get the quotas. So the ones who are getting excluded have decided to protest against it. And that is the reason why all this has happened. Okay. Right. Anybody else? Yeah, give the mic. So, what happened in Bangladesh happened because of the, as he said, the student protestations against the government regime. It happened also because of the police brutality that was showed against the student protesters when they started protesting initially. The government released a lot of crackdowns against them, because of which 300 people died, and majority of them were students, which at that point the army had to interfere. And it has led to the Prime Minister Sheikh Hasina fleeing from the country. And while it started because of removing a very important quota system, the student leaders demanded that the new reservation system that was going to be introduced included more of the minorities and gave them more privileges as opposed to what they were seeing currently in the system. Okay, right. Yeah. Who else? Anybody else? You're from which year? First year. Okay. Yeah, on that day also you were telling me a lot of things. Okay. No, somebody from second year and third year, now your juniors are telling us all more than what you know. Yeah. Anybody from second year and third year can tell us something. Anything that you know. I mean, there should be no hitch in speaking. Sir, जैसे there were issues that the Sheikh Hasina government has been ruling from the last 15 years, and she was trying to suppress the opposition and by putting them in jail or suppressing their voices, and even calling the student protesters razakars and everything, so that offended them even more. So that has also been a reason for all of this. Right. Okay, so I will try to put everything in a manner which is easy for you to understand. Firstly, I have to go a little bit in the history so that you can make out the whatever is happening today. It
has a legacy, it has something to the affairs of the past. As we all know that in 1947 when India got independence, the country was partitioned in two parts, one India and another Pakistan. So there were two parts of Pakistan. One was East Pakistan and the other was West Pakistan. West Pakistan is the Pakistan that you all know today. The East Pakistan was this part which we know today as Bangladesh, right? The partition happened on the ground that Muslim League wanted to have a Muslim nation which has a Muslim majority, where the population, the majority population is Muslim. So first thing that you should understand, because that's something which each Indian should understand, because that is something related to our own independence and partition. So that country, the Pakistan, which emerged on the political scene in 1947, that was an experiment which happened for the first time, wherein one part of the country was geographically at some other location and the other part was at some other location. Half of the Punjab, so East Punjab remained with India, West Punjab went to Pakistan. So the West Pakistan is in fact the Pakistan, West Punjab is in fact the Pakistan today, and the East Pakistan was far away from the West Pakistan. So I mean, since you are students of media, so this political understanding has to be there, that there are certain elements which any nation has to fulfill to be a nation, right? As everybody understands the sovereignty thing, but the geographical unity is equally important. ये नहीं हो सकता कि देश का एक हिस्सा यहाँ है और दूसरा 5000 किलोमीटर दूर है, राइट? दैट इज़ हाउ इंडिया में जितनी भी हिस्से, जितना भी हमारा आज का इंडिया है, वेदर इट्स हैदराबाद, whether it's Junagadh, I mean, all these places, the rulers of these places, they wanted to remain independent. But again, that was practically not possible. कि एक देश हो उसमें बीच बीच में थोड़े थोड़े हिस्से कोई दूसरा देश हो. It has never happened in the world. So all those areas were finally merged to create one nation that we know as India. Right? Now, there were similar kind of stories in Pakistan as well. For instance, there are 4 states at the moment in Pakistan. The Punjab, Pakistan wala Punjab, then Baluchistan, then Sindh, and then Pakhtunkhwa. 4 states हैं वहाँ पे, right? तो जो Pakhtunkhwa है, which is basically the homeland of Pathans, वो historically, I mean, history creates a lot of problem for us, for everybody in the world. तो जो Pakhtunkhwa है, obviously that was dominated by Muslims in terms of numbers in population. But it wanted to remain with India. It did not want to be part of Pakistan. Now understand, I mean, the underlying thing that you should understand, and you should keep noting down your questions, which I will take up after I finish, right? Now, the Muslim League demanded that a country is created out of the Muslim population. Now, Pakhtunkhwa is after Punjab, I mean, geographically, not geographically connected to India, the present day India and that time India. But they wanted to remain with India. But then that could not happen because geographically it was not possible, and finally a plebiscite happened. Now, most of you, almost all of you must not be knowing that the country was created on paper by the British with the consent of the political leaders of India and Pakistan. But and then people were not asked whether they want the partition of the country, whether they want to be in this country or that country. It was a decision taken by a political leader of that time and the British authorities of that time. But
Pakhtunkhwa was one area wherein people were asked, there a plebiscite happened. People were asked where they want to go, right? And almost with a thumping majority, I cannot tell you the exact figures, but somewhere 80-90% people said that we want to be with India. This might look like a strange thing to your generation since you do not read that much. That religion cannot be the uniting force. Lot of people think, I mean, from among you also, many of you must be thinking that religion is very important and religion is something which unite us. But that did not happen even in 1947. We are in one state, Muslim majority state, they did not want to be with Pakistan, right? Now, in East Pakistan, the present day Bangladesh, that was created on the basis, there also not everybody was interested to be in Pakistan, to be with Pakistan. But that happened for the reason because in 1905, Muslim League, I repeat, in 1905, the British authorities of that time, they decided to divide then Bengal into two parts. 1905 में उन्होंने बंगाल को दो भागों में बांट दिया फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस. देश एक ही था बिकॉज सारा कुछ अंग्रेज़ों के ही अंडर में था, बट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस दे डिवाइडेड बंगाल इनटू टू पार्ट्स. द मुस्लिम मेजॉरिटी पार्ट ऑफ बंगाल बिकेम ईस्ट बंगाल एंड द हिंदू मेजॉरिटी बंगाल बिकेम वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल अभी हमारे साथ, और जो ईस्ट बंगाल था, जो 1905 का ईस्ट बंगाल था, वही आज का बांग्लादेश, राइट? तो उन्होंने रिलीजन के बाद पर, तो रिलीजन के नाम पे जो हमारा पार्टीशन हुआ 1947 में नहीं हुआ. द बेसिक कॉन्सेप्ट वॉज mooted बाय ब्रिटिश बाय टेकिंग मुस्लिम लीग अलॉन्ग. ठीक है, तो बहुत सारे लोग आज भी, जो लोग भी थोड़ा भी पॉलिटिकली अवेयर हैं, वो कभी इसको एक्यूज़ करते हैं, कभी उसको एक्यूज़ करते हैं. इट हैपेंड इन 1905 एंड द बेसिक आइडिया वॉज दैट ऑफ द ब्रिटिश बिकॉज दे वॉन्टेड टू रूल बाय क्रिएटिंग डिफरेंसेस अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स. सो दैट बिकेम द बेसिस. तो वो जो ईस्ट बंगाल था विच वॉज created in 1905 became East Pakistan. So ground was already there to have a separate area for Muslims, right? Now, there were issues between East Pakistan and West Pakistan on the basis of language. ये अंडरलाइंग फैक्टर नोट कर लेना. इट्स नॉट दैट आई एम मियरली स्टेटिंग द फैक्ट्स, बट देयर इज़ अ मीनिंग बिहाइंड. जो मैंने पहले बताया कि रिलीजन के नाम पे बना देश 47 में ही, लेकिन पख्तूनख्वा ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं जाना हमें बाकी मुस्लिम्स के साथ. ठीक है, तो अब जब तो अब देन अनदर क्वेश्चन कम्स एंड यू कैन ऑल्सो रिलेट ऑलवेज बिकॉज इंडिया की बात हो रही है. जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो हम इन ए वे इंडिया की बात कर रहे हैं. जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम इन ए वे इंडिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि 47 तक एक ही देश था और अदरवाइज ऑल्सो इट्स नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो तीनों देश आज भी सब इंटरलिंक्ड हैं, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं. So now coming to the issue of language. Language is something which really unites, not the religion, which was proved in 1947, which was again proved in 1971 when Bangladesh was created. But language is really something which is very, very important. And I should tell you this, till date, India's, or rather I should ask you, anybody who can tell me, which is the नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? गुड. या क्यों नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है सर? इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं एंड वो एक कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे. लाइक लोग
पीपल आर फाइटिंग कि हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए, हमारी नहीं, क्योंकि इंडिया में 22 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो इसलिए ठीक। किसी को भी कंसिडर ठीक। नहीं करता। तो जितने लोगों को नहीं पता था अभी तक, वो इस बात को समझ ले, इंडिया की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारी जो अगर हिंदी है वो भी राजभाषा है, मतलब गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में नेशनल लेवल पे यूज़ होती, वो भी होती नहीं उतनी, लेकिन है, ऑफिशियली राजभाषा है। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है फॉर द रीज़न बिकॉज इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री composed of so many religions, cultures, languages. So अगर एक language बना देंगे then obviously there will be heartbeat in other states, other parts of the country, and which will create bickerings. तो बहुत वाइजली आज तक लैंग्वेज के नाम पे हमने अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाई, अदरवाइज पाकिस्तान जैसी हालत होती। ठीक है, तो विच इज़ अ वाइज थिंग डन। नाउ पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान बड़ा ही स्ट्रेंज एग्जाम्पल है फॉर अंडरस्टैंडिंग सो मैनी थिंग्स। I mean, it's not that we should be pro-Pakistan or anti-Pakistan. We should understand the basic facts and the meaning that is derived from that. पाकिस्तान में अभी 4 स्टेट्स हैं आज की तारीख में। पंजाब, जहाँ के लोग पंजाबी बोलते हैं, ठीक है। पख्तूनख्वा, जहाँ के लोग पख्तूनी बोलते हैं। बलूचिस्तान, जहाँ के लोग बलूची बोलते हैं। सिंध, जहाँ के लोग सिंधी बोलते हैं। और जो उस 71 से पहले जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ के लोग बांग्ला बोलते हैं। उस समय 5 स्टेट थे, अब 4 हैं। हर स्टेट की भाषा अलग, राइट। तो उनके पास भी वही प्रॉब्लम थी जो हमारे पास थी कि किसको नेशनल लैंग्वेज बनाई। तो इंडिया हैड बेटर लीडर्स, तो हमने कोई भी अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाई। पाकिस्तान ने अपनी नेशनल लैंग्वेज उर्दू घोषित कर दी, जो 5 स्टेट में कोई नहीं बोलता था। ये स्ट्रेंज है, दुनिया के सारे देश देख लो, नेशनल उनकी लैंग्वेज वही होगी जो वहाँ के लोग बोलते होंगे। पाकिस्तान में जो लैंग्वेज लोग नहीं बोलते थे वही उन्होंने नेशनल लैंग्वेज बना दी, आइडेंटिफाइंग इस्लाम विद उर्दू, विच वॉज फंडामेंटली रॉन्ग एंड दे पेड द प्राइस फॉर दैट, क्योंकि उर्दू भी मुसलमानों की भाषा नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रेंज चीज़ें हैं जो नोट करना, पूछ लेना या पढ़ लेना आगे। उर्दू का जो ओरिजिन है वो यूपी में हुआ, वेस्टर्न यूपी में हुआ, एंड दिस लैंग्वेज इवॉल्व्ड बिकॉज ट्रेडर्स वर कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया, फ्रॉम वेस्ट एशिया, एंड दे हैड इंटरेक्शन प्रॉब्लम विद इंडियन ट्रेडर्स। तो एक बीच की इंटरेक्शन की भाषा डेवलप हुई, और जिसकी स्क्रिप्ट पर्शियन थी, बोलचाल में वो भाषा जो हम सब बोलते हैं यही भाषा थी। सो दिस टर्न आउट टू बी उर्दू। तो किसी एक हिंदू मुस्लिम की नहीं थी, ये सबकी भाषा थी। इवन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी था। ब्रिटिशर्स के आने के बाद भी अभी भी आज भी कोर्ट्स में वही सारे टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं। कोर्ट की भाषा वही थी, स्कूलों की, कॉलेजेस की भाषा भी उर्दू ही थी। तो ये हिंदू मुस्लिम नहीं था, जब तक उर्दू थी सारे लोग उर्दू में ही पढ़ाई करते थे, उर्दू में ही अदालतों का काम होता था। और अगर लिटरेचर के हिसाब से देखें तो उर्दू का जितना विकास हुआ, जितनी ग्रोथ हुई, सारे हिंदू राइटर्स, सो कोई भी मुस्लिम, बहुत कम मुस्लिम्स थे। ठीक है, बट देन द होल थॉट with which Pakistan was created, they again committed a blunder कि हमारी भाषा उर्दू होगी। तो इसका सब ने विरोध किया, सिंधियों ने भी विरोध किया, बलूचियों ने भी विरोध किया, क्योंकि हर आदमी अपनी मातृभाषा में बात करना चाहता है, अपनी मदर टंग में बात करना चाहता है। तो इसको लेके 1950 से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। 1955 के अराउंड भाषा आंदोलन हुआ ईस्ट पाकिस्तान में, जो मतलब बांग्लादेश में। उन्होंने कहा कि हमारे लैंग्वेज के साथ कोई हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हमारी लैंग्वेज बांग्ला। वो बढ़ता रहा, बहुत सारे और फैक्टर्स ऐड होते गए। उन्होंने उस समय भी गोली चलाई, बहुत सारे लोग मारे गए भाषा आंदोलन में। उन सब की स्टैचूज़ आज भी सब है ढाका में। फिर अगेन जो पॉलिटिकल पावर थी पाकिस्तान की, वहाँ इलेक्शन हुआ।
अब इलेक्शन में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो सबको समझनी चाहिए। इलेक्शन में क्या होता है, अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझो कि 80 सीटें यूपी से आ रही हैं और 54 सीटें मध्य प्रदेश से आ रही हैं, 45 सीटें बिहार से, लाइक दिस। तो वहाँ भी 5 स्टेट थी, हर एक से कुछ कुछ सीटें आती थीं, और तो उनकी पार्लियामेंट का नाम है नेशनल असेंबली, तो असेंबली पाकिस्तान की बनती। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं ये पॉपुलेशन के बेस पे बनती हैं, तो इसीलिए इंडिया में यूपी में 80 सीटें हैं, जहाँ की आबादी ज़्यादा है तो हर 10 लाख पे 1 सीट हो गई, तो ज़्यादा सीटें हो गई। तो ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ की आबादी ज़्यादा थी, तो एज़ कंपेयर टू ऑल 4 स्टेट जो अभी पाकिस्तान में, वहाँ नंबर ऑफ सीट ज़्यादा थी। जब इलेक्शन हुआ वो सारी सीटें स्वीप कर ली अवामी लीग ने। तो जब टोटल नंबर आया पार्लियामेंट में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, जो रावलपिंडी नहीं क्या है, इस्लामाबाद में, उस पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी थी वो अवामी लीग की हो गई। तो सरकार जिसकी मेजॉरिटी होगी उसी की बनेगी। तो जितनी पंजाब की, मतलब पाकिस्तान के पंजाब की लीडरशिप थी, दे सेड कि वी विल नॉट लेट बंगालीज रूल पाकिस्तान। नाउ इस्लाम पीछे चला गया, मुसलमान तो सारे ही थे, बंगाली भी थे, पंजाबी भी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब पाकिस्तान मतलब डोमिनेशन ऑफ पंजाब, उनका हम पंजाबी बंगालियों के शासन में नहीं रहेंगे। तो दे प्लेड ऑल काइंड ऑफ ट्रिक्स टू डिप्राइव शेख मुजीबुर रहमान, who was the leader of Awami League, to become the prime minister. तो अब क्या हुआ, लैंग्वेज coupled with depriving them from their legitimate political share. So a movement started in East Pakistan, now today's Bangladesh. ठीक है, बांग्लादेश में लगातार टर्मोइल रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस वे। तो वो आंदोलन चला, आंदोलन के बाद वहाँ पे जो पाकिस्तानी आर्मी थी, पाकिस्तानी आर्मी मीन्स इधर पंजाब के जो लोग थे, पंजाबी people in Pakistani army was sent to East Pakistan, and then the whole effort was made to crush the movement. तो 70-71 में it continued, and एक 2-3 बहुत important factors हैं which every sensible person should know, whether that happened in Bangladesh or anywhere. तो जो पाकिस्तानी आर्मी ने अपने ही सिटीजन्स के खिलाफ उनको क्रश किया, और जैसे अभी तो 300 ही लोग मरे, वहाँ कितने लोग मरे नहीं पता, रोज़ गोलियाँ चलती थी, और फाइनली इट टर्न्ड आउट टू बी अ सिविल वॉर. Civil war, people on one hand and army, Pakistani army on the other hand. Okay, so there's huge number of casualties, and it continued almost a year. I mean 8 to 10 months, right? तो इसके बाद और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बहुत स्ट्रेंज फैक्टर मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी क्या जो रिजर्वेशन की प्रॉब्लम थी, बांग्लादेश की अभी जो आबादी है वो इंडिया की तरह की है. वहाँ की बांग्लादेश की पॉपुलेशन में द मेजॉरिटी इज़ ऑफ द यंग पीपल, राइट? जैसे इंडिया इज़ नोन एज अ कंट्री ऑफ यंग पीपल, सो बांग्लादेश सेम वे इज़ नोन एज अ कंट्री ऑफ यंग पीपल. एंड आई कैन नॉट एग्जैक्टली गिव यू द स्टेटिस्टिक्स, बट द मेजॉरिटी जो अभी यंग लोग हैं, दे हैव taken birth after 1971, after the creation of Bangladesh, right? तो अभी वही प्रॉब्लम आ रही है कि अभी की जो जनरेशन है बांग्लादेश की, दे नो नथिंग अबाउट देयर फ्रीडम स्ट्रगल, कि 97 में कंट्री कैसे बना था. ये तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तुम उसी एज ब्रैकेट में हो. तो अभी जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, ऑब्वियसली सब 71 के बाद के बॉर्न हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं कि बांग्लादेश कैसे बना, इनको इससे कोई मतलब नहीं कि कितनी सेक्रीफाइसेस हुई. उनका कहना ये है कि हम पास्ट में नहीं रह सकते, जब बना तब बना. उस समय फ्रीडम स्ट्रगल में जो लोग थे
ठीक है, उन्होंने सेक्रीफाइस की, बट दैट डज नॉट मीन कि 100 साल तक आप उसी को बताते रहेंगे कि बहुत सेक्रीफाइसेस हुई। अवामी लीग ने इस सारे मूवमेंट को लीड किया, जिसकी वजह से बांग्लादेश बना एज ए नेशन। और मुजीबुर रहमान की लड़की हैं शेख हसीना, तो वो भी फादर की लीगेसी, तो वो हमेशा 71 की बात करती हैं कि किस तरह से बना देश। तो और इसलिए उन्होंने रिजर्वेशन दिया उन लोगों को जो फ्रीडम स्ट्रगल में जिन लोगों ने सेक्रीफाइसेस की थी, जिन्होंने जान दी थी, उनके बच्चों को रिजर्वेशन दिया, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सेकंड जनरेशन को भी रिजर्वेशन दे दिया। नाउ यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई कि जो यंग लोगों का कहना था कि हम आज के बांग्लादेश में पैदा हुए हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, और फ्रीडम स्ट्रगल में जो लोग थे उनकी थर्ड जनरेशन को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो नाउ प्रॉब्लम्स हमारी भी वही हैं, हमारे पास भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे पास भी वही है कि यंग लोगों को अपने देश के बारे में, अब मैंने जितना बताया 90% चीज़ें तुम्हें किसी को नहीं पता है, हमें भी अपने देश के बारे में नहीं पता है। तो ये टेक अवे है कि देश को जानना भी, दोनों पक्ष हैं। आई मीन यू कैन नॉट टेक इट ओनली दिस इज़ राइट और ओनली दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। उनको नौकरियां चाहिए यंग लोगों को, बट हाउ कैन यू थिंक समथिंग विच हैज़ नो कनेक्शन विद योर ओन कंट्री। आपको अभी अब सब लोग कहने लगे हमें 47 में क्या हुआ, कोई मतलब नहीं है, कि किसी चीज़ से मतलब नहीं है, हमें तो आज की बात करनी है। तो नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन गो अहेड विद दिस, वेयर इन यू completely discount, you completely reject your past, you completely reject your freedom struggle. That is why in always whenever I'm interacting with young people, I ask everybody to read about your freedom struggle, because that is where you are rooted to whatever has happened. कोई भी देश, कोई भी समाज रूटलेस नहीं हो सकता, आपको रूट्स के बारे में पता होना चाहिए। That gives you a sense of belongingness with your country. और जब वो बिलोंगिंगनेस होगी, ठीक है, नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन वो बिलोंगिंगनेस होगी, यू विल नॉट डू एनीथिंग विच इज़ गोइंग अगेंस्ट द कंट्री, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये एक पॉइंट ऑफ टसल था जो तुमने किसी ने इस ढंग से नहीं समझा होगा अभी जो हो रहा है बांग्लादेश, ठीक है। नाउ बांग्लादेश में, खैर मैं उतना हिस्ट्री में उतना ही बता रहा हूँ जो बहुत रेलेवेंट मुझे लग रहा है। 71 में जब बांग्लादेश बना, तो उस समय मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की आर्मी ने अरेस्ट कर लिया था, अरेस्ट करके आज के पाकिस्तान में ले गए थे। लेकिन यहाँ पीपल्स अपराइजिंग हुई और उसमें इंडिया ने भी सपोर्ट किया टू इंश्योर दैट इट सक्सीड्स। और दो और बड़ी घटनाएं हुई जो सबको जाननी चाहिए। दो बड़ी घटनाएं ये हुई कि पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर कर दिया। इंडिया और पाकिस्तान की फाइनली जो बांग्लादेश की सिविल वार थी, दैट टर्न्ड आउट टू बी ए फुल फ्लेजेड वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान मीन्स ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। तो आर्मी की लड़ाई हुई और आर्मी के ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी मार्च में, और जो वॉर हुई, फुल स्केल वॉर, वो हुई दिसंबर में। क्यों? Anybody who can apply his or mine? हाँ, सर जहाँ तक मुझे पता है, जो वॉर स्टार्ट की थी पाकिस्तान ने, उसके बाद बांग्लादेश के जो भी उस टाइम पे लीडर थे, उन्होंने इंडिया के जो लीडर थे उनसे हेल्प मांगी थी, और इंडिया के लीडर्स ने उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो गए थे। बट जो इंडिया के आर्मी ऑफिशियल्स थे, उन्होंने बोला हम अभी अटैक नहीं कर सकते क्योंकि मानसून सीज़न आने वाला है और आर्मी को हम तब तक प्रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए फिर उन्होंने दिसंबर में जाकर वॉर को स्टार्ट किया था और विद इन अ वीक वॉर ख़त्म हो गई थी और पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। गुड, ऐसे ही स्टूडेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने टाइम किया इंडिया ने वॉर को, और एक तो दिस वाज वन रीज़न, देयर वर अदर रीजंस एज वेल। अदर रीजंस वर कि जब वहाँ टर्मोइल शुरू हुआ बांग्लादेश में, जो अभी हमें भी ख़तरा है कि अगर ये रुका नहीं तो फिर वहाँ से लोग आना शुरू हो जाएंगे, इन्फ्लक्स। तो इंडिया में बॉर्डर, और इंडिया का सारा पोरस बॉर्डर है, करीब 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। तो उस समय भी वो प्रॉब्लम थी, तो लाखों लाख लोग इंडिया में आ गए, इंडिया ने उनको शेल्टर दिया, फिर यूएन ने हेल्प किया। सो इंडिया मेड ए केस बिफोर यूएन अदर इंटरनेशनल एजेंसीज दैट बिकॉज ऑफ द मिसहैंडलिंग ऑफ सिचुएशन
in East Pakistan by Pakistani government. So because of that, we are suffering. So this was, so diplomatically, India created a situation in the world to make the leaders of different countries that we are suffering because of this, because Pakistan is not handling the East Pakistan situation properly, and there's a risk to our security. There is a financial load on us, क्योंकि जितने लाखों लोग आए थे इंडिया में रह रहे थे, तो उनको रखना खाना खिलाना इंडिया की जिम्मेदारी थी. दो UN agencies were also there. तो India diplomatically created a ground to enter into a full-fledged fight with Pakistan. Okay. So the historic thing happened. 95,000 soldiers of Pakistani army surrendered before Indian army at the end of this war, December 1971. ठीक है, तो ये हिस्टोरिक है दुनिया के लेवल पे कि इतनी बड़ी आर्मी ने एक साथ सरेंडर किया. ठीक है, एंड दैट इज हाउ ए डिफरेंट न्यू नेशन वाज क्रिएटेड, एंड पाकिस्तान वाज सो मच अंडर प्रेशर. आई मीन आर्मी की डिफीट प्लस इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर. फाइनली पाकिस्तान हैड टू रिलीज शेख मुजीबुर रहमान फ्रॉम प्रिजन in present day Pakistan. तो वो शेख मुजीबुर रहमान 1972 में बांग्लादेश आए, and then he took over as leader, as prime minister of Bangladesh. But the same year, army attacked the residence of Sheikh Mujibur Rahman, and his entire family was eliminated. सारे 3 जनरेशन के लोग थे, सबको मार दिया. क्यों किया होगा? जिसने इतनी लंबी फाइट की, जिसने एक इंडिपेंडेंट नेशन क्रिएट किया, उसकी पूरी फैमिली को हत्या क्यों की? आर्मी ने क्यों मारा सबको? ये किसका इंटरेस्ट है? जिसने देश बनाया उसको क्यों हत्या करेंगे? डिक्टेटरशिप वो तो हाँ? अरे सेम ईयर सुना भी तो करो. 5 साल बाद करता तो समझ में आता, उसे टाइम ही कहाँ मिला? टू मेक हिम अ मार्टर, अगर वो मर जाते हैं तो उनका level essentially. Here you should understand now, I mean 2 more things. तो आज की तुम्हें सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी. Since the birth of Bangladesh till date, there have been 2 line of thoughts. 2 तरह के विचार हैं. ठीक है, विचारों की लड़ाई है बेसिकली ना. There are two line of thoughts. One, जो पाकिस्तान वाली लाइन है, पाकिस्तान का थॉट है, that the majority community should rule, the religion of the majority community should dominate, and in essence the majority should prevail. When majority prevails, इसका मतलब क्या है? When majority prevails, when you are following this kind of thought, this means there is no space for minorities. There is no space for the political rights of minorities. There is no space for the language, if there is a different language of minorities. And whatever the majority decides, that will prevail. ठीक है, अब हम इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो है कि मुस्लिम Islam will be the state religion. Muslims will get all kind of facilities and minorities will be placed nowhere. राइट अब इसको हम ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें, वहाँ भी मुस्लिम मेजॉरिटी है अगर हम रिलीजन के हिसाब से देखते हैं. राइट तो जो लाइन ऑफ थॉट है वो ये है कि अगर मुस्लिम मेजॉरिटी है तो कंट्री शुड बी रूल्ड बाय द रूल्स ऑफ इस्लाम. राइट
जो अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें, चूँकि हिंदू मेजोरिटी है, तो हमारी अगर कुछ पार्टियां ये कहती हैं कि एवरी रूल शुड बी मेड टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज इंटैक्ट, माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं ज़्यादा राइट देंगे, इट्स माइनॉरिटी वर्सेस मेजोरिटी, राइट। तो बांग्लादेश में भी वो लाइन ऑफ थॉट है कि मुस्लिम्स आर इन मेजोरिटी, सो मुस्लिम लॉ के हिसाब से देश चलना चाहिए, मुसलमानों को सारी प्रेरोगेटिव्स मिलनी चाहिए। दूसरी लाइन ऑफ थॉट है वो ये है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स, whosoever is living in Bangladesh is a Bangladeshi citizen, whichever language he or she belongs to, will have the equal rights. And it will not be an Islamic country, it will be a secular country, right? तो जो अवामी लीग थी और जो मुजीबुर रहमान का थॉट था, he believed in secularism, despite it becoming Muslim majority state, right? तो ये जो थॉट है सेकुलरिज्म का, ये पाकिस्तान वाले थॉट से मेल नहीं खाता था और इंडिया के थॉट से मेल खाता था, सिंस इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री एंड अवामी लीग मुजीबुर रहमान वॉज ऑल्सो वांटेड टू क्रिएट अ सेकुलर कंट्री, राइट। तो जब 71 की वॉर हुई, उस वक्त भी जब 71 में सिविल वॉर चल रहा था, उस समय भी बांग्लादेश, उस समय के ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा क्लास ऐसा था जो एक इंडिपेंडेंट देश नहीं चाहता था। जो आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी से लड़ाई हो रही थी, तो पाकिस्तान की आर्मी के साथ था वो, जिसे हम जो आज भी वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जमात इस्लामी, तो जमात इस्लामी के लोग थे वो पाकिस्तान की आर्मी के साथ थे, और जो लोग बांग्लादेश बनाने और इंडिपेंडेंस के लड़ रहे थे उनके खिलाफ थे। ठीक, फाइनली देश बन गया, वो एक सेकुलर कंट्री की तरह से बना, मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में बना। तो वो तमाम लोग जो पहले प्रो पाकिस्तानी थे, जो प्रो पाकिस्तानी आर्मी थे, जो चाहते थे कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग ना हो, वो सारे जो थॉट वाले लोग थे वो कब्ज़ा करना चाहते थे देश पे। उनको सेकुलर अवामी लीग नहीं चाहिए थी। तो आर्मी ने, आर्मी की लीगेसी तो वही थी पाकिस्तान वाली, तो आर्मी में ऐसे लोग जो थे उन्होंने ये तय किया कि अगर इन सबको मार देंगे देन वी कैन क्रिएट ए मुस्लिम नेशन। तो मुस्लिम नेशन बनाना था, ठीक है। तो और उन्होंने ये ना सिर्फ तो पूरी फैमिली को मारा, बच्चों को भी मारा कि आगे कोई बचे ना इनकी फैमिली का। और जो सबसे क्लोजेस्ट लोग थे मुजीबुर रहमान के गवर्नमेंट में, 4-5 जो टॉप मिनिस्टर्स थे जो पूरे मूवमेंट में थे, उन सबको मार दिया साइमल्टेनियसली। सुबह 3-4 बजे एक साथ अलग अलग जगह अलग अलग पुलिस वो आर्मी के लोग भेजे गए, सारी रोड्स ब्लॉक कर दी, साइमल्टेनियसली मारा सबको कि किसी के बच नेक्स्ट कोई टेक ओवर करने वाला ना हो। सो आर्मी टुक ओवर। Then it was a army rule in Bangladesh, which was anti-minorities. Anti-minorities in Bangladesh means anti-Hindu. तो हिंदूज़ की बहुत सारी किलिंग्स हुई, हिंदूज़ वहाँ से भाग के आए, ठीक है। ये दिस कॉन्टीन्यूड 72 ऑनवर्ड्स। उसके बाद एक और पार्टी बनी, अवामी लीग वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, राइट। फिर एक और पार्टी बनी, तो पॉलिटिकल पार्टी, तो आर्मी थी। फिर पॉलिटिकल पार्टी बनी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, BNP, खालिदा जिया के हस्बैंड जियाउर रहमान। ही कैप्चर्ड द पावर 95-96 अराउंड, राइट। तो अभी जब दूसरी, तुमने अगर जो लोग फॉलो कर देखा होगा, खालिदा जिया, वो जियाउर रहमान की बीवी। तो उन्होंने अब उसके बाद सारी पॉलिटिक्स पिछले 25 सालों में बांग्लादेश की 2 स्ट्रीम्स में है। वन लेड बाय खालिदा जिया जो मुजीबुर रहमान की, ये कैसे बच गई? ये दोनों बहनें ये शेख हसीना और रेहाना, ये दोनों जर्मनी में थी, पढ़ रही थी, तो इसलिए दोनों बच गई। फिर वहाँ से ये लोग इंडिया आई, फिर इंडिया में ही रहीं बिफोर लीविंग फॉर बांग्लादेश, राइट। तो एक विचार, ये
उसी विचारधारा जो सेकुलरिज्म वाली विचारधारा है, जहाँ सबको राइट्स हैं, जहाँ माइनॉरिटीज़ मतलब हिंदुओं को भी राइट्स हैं, सबके लिए सबको प्रोटेक्शन है, वो वाली विचारधारा थी। दूसरी बीएनपी जो अभी शेख खालिदा जिसको रिप्रेजेंट करती, खालिदा जिया। तो ये दो विचारधाराओं की लड़ाई, इसीलिए इंडिया का इंटरेस्ट था कि ये रहें पावर में, और इसीलिए अब प्रोटेक्ट भी किया। क्योंकि हमारा क्या है, एक तो ये कि एक तो हिंदू या जो भी माइनॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा चूँकि हमारे कि हिंदुओं का प्रोटेक्शन, अभी भी वही बात उठाई है। दूसरा ये था कि जो वो वाला बांग्लादेश था, जो इस्लाम वाला, जो आर्मी वाला और बीएनपी वाला, उनका वो इंडिया से उनके रिलेशन बहुत ख़राब थे। हमारा इतना बड़ा बॉर्डर है, हमारा नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जितने भी टेररिज्म मूवमेंट चले, जैसे उल्फा का अगर हम कहें, उन सारे लीडर्स को जब उनमें बीएनपी का शासन था, मिलिट्री का शासन था बांग्लादेश में, वहीं रहते थे, वहीं से आंदोलन चलाते थे, वहीं से हथियार मिलते थे, वहीं से इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करते थे। तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट था वो पूरा सिक्योर नहीं था। तो जब शेख हसीना आई, उसके बाद से हमारा सारा नॉर्थ ईस्ट का सारा टेररिज्म कंट्रोल में आ गया। तो इंडिया में पीस था बिकॉज शेख हसीना वहाँ पे रूल कर रही थी, राइट। तो यहाँ ये तुम्हें बेसिकली विचारधारा के हिसाब से चीज़ों को, अभी बहुत सारा सोशल मीडिया पे भी तमाम जो इग्नोरेंट लोग हैं वो हसीना के ख़िलाफ़ क्या क्या लिख रहे हैं। मतलब वो और उसकी पूरी फैमिली, सोचो कितनी सेक्रीफाइसेस उसके फादर ने देश क्रिएट किया, और 15 साल से उसने जो पॉलिसी अपनाई, इंडिया वॉज द बिगेस्ट बेनिफिशरी, क्योंकि हम शांति से रह रहे थे अपने देश में। अब सारे हमारे बॉर्डर्स इनसिक्योर हैं आज की तारीख में, सब जगह हमने अपनी आर्मी की प्रेजेंस बढ़ा दी है कि उधर से इन्फिल्ट्रेशन ना हो, टेररिस्ट ना हो। तो दिस इज़ द क्रक्स। एक बात और बता देता हूँ, बांग्लादेश के फ्रीडम स्ट्रगल में जो बहुत ही शॉकिंग होगी, बट आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी टू नोट इट डाउन एंड रीड, तो तुम्हारी थोड़ी सेंसिटिविटी को थोड़ा झटका लगेगा। दिस इज़ ए हिस्टोरिकल फैक्ट कि जब पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पर जो भी फ्रीडम चाहते थे बंगाली, उनसे लड़ रही थी, तो बाकी एट्रोसिटीज़ अपनी जगह हैं कि लोगों को मार रहे थे, गोली चला रहे थे, वो तो अपनी जगह है। दे यूज्ड रेप एज ए टूल टू सप्रेस बंगालीज इन ईस्ट पाकिस्तान। तो पूरी हिस्ट्री में दुनिया की इतने रेप्स एट वन टाइम कहीं नहीं हुए आज तक। तो दे यूज एज अ टूल, क्योंकि पीपल विल गेट डिमोरलाइज्ड एंड पीपल विल बी will not continue their movement. That is what they were thinking, पाकिस्तानी आर्मी। और इसके ऊपर फिल्में भी बनी हैं, काफ़ी बहुत मटेरियल है कि उसके बाद जो उस समय 71 में जो बच्चे पैदा हुए, जो पाकिस्तानी आर्मी के रेप से पैदा हुए, उनकी संख्या लाखों में बांग्लादेश की पॉपुलेशन में, ठीक है। और वो अगर तुम पढ़ोगे तो हिल जाओगे जहाँ भी तुम, इट इज़ एवरीवेयर अवेलेबल, सारा डेटा अवेलेबल है, ठीक है। तो अब ये विचारधारा है, एक तरफ ये विचारधारा है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं शेख हसीना के जितने पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, जो खालिदा जिया एंड कंपनी और सब हैं। तो इसलिए इंडिया का इंटरेस्ट था कि ये कंटिन्यू करती, समहाउ अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट हैपन। उसमें जमाते इस्लामी के कुछ बड़े नेता थे, जो बांग्लादेश तो बन गया, लेकिन बांग्लादेश बनने के बाद भी वो बांग्लादेश के विरोध में बात करते थे, राइट। और पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में उन्हीं लोगों ने कब्जा कर लिया, आर्मी आ गई, बीएनपी आ गई। बाद में जब शेख हसीना पूरी मेजॉरिटी के साथ आई 2008 में, 71 से इतना लंबा टाइम लग गया, पहले भी आई पावर में, बट प्रॉपर मेजॉरिटी के साथ 2008 में आई। जब 2008 में मेजॉरिटी के साथ आई तो शेख हसीना ने ये प्लेज लिया कि जिन लोगों ने इतना महिलाओं के साथ रेप करवाए हैं, जिन लोगों ने सारी पॉपुलेशन को इतना मरवाया है, दे हैव टू अकाउंट फॉर दैट। तो ऐसे जितने लोग थे, जो थे उस समय जिंदा थे जमात के लोग, उनके खिलाफ मुकदमे चले और उसमें 2 टॉप लीडर्स को फांसी हो गई।
जो उस समय भी ये कहा जा रहा था बांग्लादेश में कि बहुत टर्मोइल होगा जब आप फांसी दे देंगे लोगों को, लेकिन शी डिसाइडेड टू गिव ए डेथ ब्लो टू सच पीपल। तो उसने उतनी हिम्मत दिखाई, अभी तो सब कह रहे हैं भाग गई, वो जितनी बहादुर लीडर थी, अब वो तो सर्कमस्टांसेस हैपेंड दैट वे टुडे, तो इतनी बहादुर थी कि उनको लटका दिया फांसी पे। नोबडी कुड एवर थिंक कि ऐसा कर सकती है वो। उसके बाद जो सेकुलर फोर्सेस थी, उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन में बांग्लादेश के जो इस्लामिक वर्ड था वो भी हटा दिया। उसने कहा इट्स अ सेकुलर कंट्री। तो जितने जो हिंदुओं को प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई, टेम्पल्स पे जो अटैक्स थे वो बंद हो गए। सो इट वॉज अ वेरी पीसफुल थिंग। दैट वॉज वन सक्सेस। अनदर सक्सेस वॉज जो हसीना के टेन्योर में बांग्लादेश इमर्ज्ड एज एन इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड, ठीक है, और इट्स जीडीपी सरपास्ड इंडियाज जीडीपी। क्यों? और इस समय आज की तारीख में अभी थोड़ा सा डाउन हुआ है, अब तो और नीचे आ जाएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश इमर्ज्ड अमंग द टॉप 3 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुई। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ, सारी चीज़ें हुई। एंड तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज एट ए फास्ट पेस। पीस was there, minorities were secure, but she committed one mistake and paid price for that. And everybody, I mean, not only she has paid a price, we all might be paying price for this upheaval. She enjoyed absolute power, and then absolute power, when it goes into your head, then the problem starts. When you think only you are there, and you, I mean, this applies to all the countries, and those who are ruling, if they feel that only they are capable of ruling and there should be no opposition, we will crush the opposition, सबको जेल भेज देंगे, सबको ख़त्म कर देंगे, किसी को नहीं रहने देंगे, ये जो साइके था, this prevailed on her. और उसके बाद ठीक है, वॉट एवर आप एक ऐसे थॉट, जैसे 2 थॉट की मैंने बात की, आप एक थॉट से यू आर नॉट कन्विंस्ड, बट स्टिल उसको स्पेस देना पड़ेगा। अगर आप स्पेस बिल्कुल नहीं देंगे तो वो किसी भी दिन इट विल कम बैक टू यू। दिस इज वॉट एग्जैक्टली हैपेंड। उसने अपोजिशन को ख़त्म कर दिया बिल्कुल, न सिर्फ इलेक्शन में, अदरवाइज ऑल्सो। इसके खिलाफ ये केस, उसके खिलाफ वो केस, सारे जेल में। खालिदा जिया भी जेल में थी, 2018 में 17 साल की सज़ा हुई उनको। और जब इंडिया से कनेक्शन ढूंढोगे मिलेंगे, वहाँ भी सारे लोगों को जो सज़ा हुई बांग्लादेश में, अपोजिशन लीडर्स को जो हसीना के अपोजिशन में थे, सब ग्राफ्ट में गए हैं, करप्शन में गए। तो यहाँ हाँ, तो आप ग्राफ्ट के नाम पे सबको जेल भेजो, देन देयर विल बी नो अपोजिशन। व्हेन देयर इज नो अपोजिशन, व्हाट विल हैपन? देयर विल बी सम डिसेंट सम टाइम, जो अभी हुआ, कहीं से असंतोष आएगा और वो स्पॉन्टेनियस होगा, एंड देयर इज नो अपोजिशन। तो इट विल बी बिटवीन द रूलिंग डिस्पेंसेशन एंड द प्रोटेस्ट विच इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल। बीच में कोई नहीं। अपोजिशन होने से क्या होता है कि जो भी लोगों की फीलिंग्स हैं, परेशान है लोग किसी पार्टी से, तो अपोजिशन वाली पार्टी को वोट दे देंगे। जब वो स्कोप ही नहीं है तो डायरेक्ट कन्फ्रंट करेंगे सरकार से। दिस इज व्हाट हैपेंड। डायरेक्ट कन्फ्रंट किया सरकार से, एंड सरकार, गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू हैंडल दैट, एंड देयर वाज नो अपोजिशन। जब स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हुआ तो इट वाज अ वेरी स्मॉल मूवमेंट। द गवर्नमेंट कुड हैव नेगोशिएटेड विद द पीपल, उनका बात ही नहीं करेंगे, और पीछे से आ गए सारे अपोजिशन वाले, जैसे 2014 में हुआ इंडिया में। कांग्रेस की गवर्नमेंट के खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगे, एंटी करप्शन मूवमेंट अन्ना हजारे का शुरू हुआ। इमीडिएटली सारी जो एंटी कांग्रेस पार्टी थी सारी आ गई मूवमेंट में, उलट दिया कांग्रेस को। तो अभी भी ये हुआ, जितनी सारी एंटी हसीना पार्टी थी, एंटी अवामी लीग पार्टी थी, सारी स्टूडेंट के पीछे आ गई। नहीं तो स्टूडेंट तो हैंडफुल थे, ये लोग हज़ारों लाखों में थे। एंड
emerged as a mass movement which Hasina could not handle. She did not anticipate that this will happen. And then army, the role of army in a democracy. हमारे पाकिस्तान में देख लो कितनी बार आर्मी का रूल होता है, नहीं भी होता है, सिविलियन गवर्नमेंट भी आर्मी के हिसाब से ही चलती है, जो नहीं चलती वो इमरान खान वाला हाल होता है उनका। तो वहाँ भी आर्मी, लेकिन आर्मी, ये जो आर्मी आज की है, पहले तो 2 बार हुआ ही बांग्लादेश में, अभी जो आज की आर्मी है बांग्लादेश की, दे प्लेड वेरी वाइजली। जब संडे को, अभी लास्ट संडे को, द गवर्नमेंट इन बांग्लादेश, हसीना गवर्नमेंट इन बांग्लादेश, इन्होंने शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया। आर्मी जनरल्स डिसाइडेड दैट वी विल नॉट ओपन फायर ऑन सिविलियंस, नहीं तो हज़ारों लोग मारे जाते। एंड दे टोल्ड दिस टू हसीना, वी विल नॉट ओपन फायर ऑन सिटीजन्स। दैट वॉज द टाइम दैट हसीना डिसाइडेड टू लीव, because then there was no protection to her as well. फिर तो protesters जो हुआ next day, and that is how she left the country with the consent and with the support of the army. And जो अभी army chief है, he is very pro to Hasina and the government. That is how इनको safe passage दे दिया। और उसके बाद मोहम्मद यूनुस को, मोहम्मद यूनुस के बारे में किसी को पता है? हाँ बताओ, इसको दो। Muhammad Yunus is a Nobel Peace Prize laureate. He currently lives in France. He was called to Bangladesh to become the interim prime minister, to lead the government while they have the next elections. He was sworn in yesterday on Thursday, and he requested for a stop against violence against all the minorities, and said that if the violence was not stopped, then he will not be the head of the interim government formed. Right, good. Mohammad Yunus is one person who has contributed very significantly to the development of Bangladesh. He is a teacher basically. He has studied in the West obviously, and then he came out with the idea of microfinancing in Bangladesh. बांग्लादेश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमेशा से, और दूसरी प्रॉब्लम बांग्लादेश की ये है कि वहाँ आज भी, और पहले आज से 20 साल 30 साल पहले जो बैंकिंग सिस्टम था वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जैसे अभी गवर्नमेंट ने किया है, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने, इस गवर्नमेंट ने इंडिया में, कि बैंकिंग को हर आदमी तक पहुँचाया। तो बैंकिंग थी नहीं ऐसी बांग्लादेश में, तो जो गरीब आदमी है वो, उसके पास कोई एवेन्यूज़ नहीं थे आगे बढ़ने के, या फार्मर्स हैं, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके लिए। तो देन ही केम आउट विद द होल आइडिया ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग। ही सेट अप ए बैंक विच वॉज ए बांग्लादेश ग्रामीण बैंक, और उसने बिल्कुल ग्रास रूट पे लोगों को अपलिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से बांग्लादेश में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ, बिसाइड्स वॉट एवर पॉलिसीज़ द गवर्नमेंट ब्रॉट। बट देन ये मतलब रफली ये समझो कि 90s से ही मोहम्मद यूनुस काम कर रहे हैं। इट्स अबाउट 30-40 years दैट ही हैज़ बीन वर्किंग at the grassroots level, and the standard of life of the people has risen because of that, right? तो इसीलिए उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला 2006 में, for the work that he did for the upliftment of the people in Bangladesh. Now, where the problem started? Mohammad Yunus set up his own party, political party, and he had his political ambitions lately, and then he wanted to fight election and to become the prime minister. This was the point that there was a direct confrontation between Mohammad Yunus and Sheikh Hasina, right? Or ultimately, Mohammad Yunus, there was a crackdown on Mohammad Yunus and his establishments. अभी भी बहुत सबसे बड़ा नेटवर्क उनके NGOs का है बांग्लादेश में आज भी। तो there was a crackdown, बहुत सारे फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन के केसेस उनके खिलाफ हुए, मोर देन 10 केसेस आर देयर जो फाइट कर रहे हैं कोर्ट में। ही वॉज सेंट टू जेल, एंड
नाउ हियर यू शुड अंडरस्टैंड, ये पॉलिटिकल राइवलरी थी इंडिविजुअल बेसिस पे, पॉलिटिकल बेसिस पे, थॉट के लेवल पे दोनों एक ही थॉट प्रोसेस के लोग हैं. तो थॉट के लिए यहाँ अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट. सो वेन एवर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर जो लोग समझ पाएँ इसको, आई बिलोंग ए सर्टेन thought, you also belong to the same thought, but I want to remain in power and that is how I will never allow you to come to the forefront. तो वैचारिक आधार एक है, थॉट एक है, लेकिन पॉलिटिकल पावर ग्रैब करनी है तो राइवल को नहीं आने देना, भले ही वो सेम थॉट प्रोसेस को बिलोंग करता. तो दिस इज हैपनिंग इन इंडिया, दिस हैपेंड देयर. तो उन्होंने, शेख हसीना ने अपोजिशन को भी ख़त्म किया और अपनी जो विचारधारा थी उसके मानने वालों को भी ख़त्म किया. सो देयर वाज ए कंप्लीट वैक्यूम. तो वो होना था कि अगर ये हटे तो कुछ नहीं, फिर सिस्टम विल कोलैप्स. फाइनली इट कोलैप्स्ड. सो शी नेवर थॉट कि इट विल हैपन, बट इट हैपेंड. सो दिस इज समथिंग दैट एनी कंट्री, द टेक अवे इज एनी कंट्री which is developing economically has to make sure, the government of such a country which is developing fast, like India, we are economically developing very fast. So even if the government is doing its best on the economic front, on economic development, but the political freedom should also be intact. Civil liberties should also be intact. Because if you remove civil liberties, if you crush the dissent, and there is nobody to raise a voice, then problems will arise one day. This is what happened in Bangladesh. So this is unfortunate for all such people who want to, who believe in love, who believe in peace, who believe in communal harmony, who believe in fraternity, and who believe that everybody should have the same rights and there is all around peace in the society. So there's a setback to all such forces, whether in Bangladesh or in India. And if the security situation does not improve in Bangladesh, though we should hope it will improve, then the biggest price India has to give for this. Right? Though yesterday, last evening, Mohammad Yunus have taken over because of this high-handedness of Hasina government, he left the country and that is how he was living abroad. Now he has returned and last night he has taken oath as the chief advisor of interim government. Right? Now, interestingly, I mean, you can understand this. Who proposed the name of Mohammad Yunus? The student protesters. This means the student protesters also belong to the same thought process. नहीं तो वो किसी और का नाम लेते. तो वो सब हसीना वाली विचारधारा के ही लोग थे. But Hasina committed a mistake by adopting the policy of repression and not listening to the legitimate demands of the people. ठीक है? So I finish with this. Yeah, questions हैं तो बताओ. Yeah. Definitely, it was a very enlightening session, I must say. In fact, I have also, no, I don't need it. नहीं ले लो वो फिर प्रोडक्शन के. I also came closer to so many historical perspectives which I was totally unaware about, and it was thoroughly an enlightening session. I'm sure all the students have filled all their empty minds with the history of Bangladesh as well as India. Sir, I would like to ask one question. So this unrest which is happening in Bangladesh, there is definitely impact is shown in India also, because there are different people who
who are writing all together, you know, their thought processes about this particular thing. Do you think that this kind of, you know, different, you know, thoughts of different people will make some impact to India also? And because somewhere, you know, if I am writing something and people are reading that, so that is one set of, you know, thought process. Other person who has a different thought is writing about it. So somewhere there are different opinions coming from different people. Somewhere it is impacting the youth also. So what do you think that... See, I have no problem with the opinions expressed. The thought process will always be different. Like as I explained, in India, in Bangladesh, there are two lines of thoughts. So till the time it is a thought, even if it is a regressive thought, even if it is a thought which is anti-humanity, even then, we should learn to listen to the thought with which we are not at all convinced. Earlier, I was also thinking the same way that, I mean, there should be no space for such kind of thought. But that's a wrong approach. You have to have a space even for a thought which is, according to you, is completely wrong, which is completely baseless. Because if you are not giving a space to that thought, then through undemocratic means, through violent means, that thought will bounce back. वो थॉट को आप क्रश नहीं, पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में दोनों तरह के थॉट हैं. जो लोग समझ पाए वो समझे, कैसे भी आप बहुत कैटेगराइजेशन मत करो. ब्रॉडली दो अलग अलग तरह के थॉट्स हैं, ठीक है. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक कांग्रेस वाला थॉट है, एक बीजेपी वाला थॉट है. मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि समझ पाओ. वहाँ पे भी बांग्लादेश में एक अवामी लीग का थॉट है, एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का थॉट है. यूके के कॉन्टेक्स्ट में एक कंजर्वेटिव पार्टी का थॉट है, एक लेबर पार्टी का थॉट है. यूके के केस में इसलिए इम्पोर्टेंट, मैं उदाहरण दे रहा हूँ. यूके में अभी कंजर्वेटिव पार्टी का इतना लंबा रूल ख़त्म हुआ है और वहाँ लेबर पार्टी जीत के आई है. एंड विद इन मंथ्स, एक हफ्ते से वहाँ दंगा हो रहा है. और लंदन में प्रोमिनेंटली, बाकी और शहरों में भी हो रहा है. तो क्यों? वो दिस इज़ अ चर्निंग ऑफ थॉट्स. एक थॉट को सेटबैक लगा और वो डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, कंजर्वेटिव पार्टी को रिजेक्ट किया. दूसरे थॉट को, लेबर पार्टी जिस थॉट को मानती है, उस थॉट को उन्होंने प्रमोट किया और लेबर पार्टी को वोट दिया, लेबर पार्टी पावर में आ गई. लेकिन जो लोग 15 साल से पावर में थे, उनको ये पचा नहीं पाए कि हमारा थॉट इतना अच्छा है और हमको रिजेक्ट कर दिया. तो अब डेमोक्रेटिक तरीके से तो हार गए, अनडेमोक्रेटिक तरीके से वो सारे काम कर रहे हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है या जो इंडिया में वही काम हो रहा है. अगर तुमको पता हो कि यूके में क्या हो रहा है, किसी को पता है यूके में क्या हो रहा है? हालांकि मैं उसमें बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि जाएगा, बट एज एन एग्जाम्पल मैंने बताया जो थॉट की प्रॉब्लम है. क्या हो रहा है? UK में there was a attack on 3 little girls, Southport attack, knife attack, and the 3 girls died. So after that, the police did not release who was the criminal, but the conservative people, they believe it was somebody from the Islamic background, Islamic neighborhood. So they've started a very mass anti-immigrant protest, and they've been continuously attacking and harassing the people who are of immigrant origins. But there has been no proof that the person who attacked the girls was an immigrant or was Muslim or anything. तो तुम, I mean, you know the half of the thing, yeah. तो यहाँ जो इसने बात की, वहाँ से एक लाइन, और जो हम दो थॉट की बात करते हैं, मैंने अपने ढंग से कोशिश की है समझाने की. तो एक थॉट वो है पूरी दुनिया में, हर देश में. एक थॉट वो है जो इमिग्रेंट्स को वेलकम करता है, किसी भी देश की बात करें. एक थॉट वो है जो इमिग्रेंट्स को आने ही नहीं देना चाहता, ठीक है. जो कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी का वहाँ का झगड़ा है, जो सेम बांग्लादेश में कि बाहर वाले लोगों को नहीं आने देना है. इंडिया में वो भी, हर देश में मोर और लेस ये प्रॉब्लम है. किस देश में कितना मैग्नीट्यूड है प्रॉब्लम का, ये अलग बात है, सब जगह. तो अब माइंड इट, ये थॉट के लेवल पे अगर आप समझ पाएँ, इसका मतलब क्या हुआ कि इंडियंस को यूके में भी जगह नहीं है. इंडियंस को हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आसानी से समझ पाओगे ना. तो इंडियंस को यूएस में भी जगह नहीं है, तो आपके लिए फिर किसी देश में जगह नहीं होगी, फ्रांस में भी जगह नहीं होगी, जर्मनी में भी जगह नहीं होगी. नाउ बैक टू इंडिया. इफ़ यू आर ऑल्सो फॉलोइंग द सेम पॉलिसी कि जो बाहर के लोग हैं उनको हम स्पेस नहीं देंगे,
तो फिर आपको दूसरे देश स्पेस नहीं देंगे जो उस थॉट को मानते हैं। तो ये थॉट की प्रॉब्लम है कि इमिग्रेंट्स को, इस पे कल ही मैं पढ़ रहा था बांग्लादेश में, एक गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हैं, वो एक फेलोशिप में 15 दिन के लिए क्लास लेने गए थे। देयर इज़ ए यूनिवर्सिटी, उसका नाम है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, चटगांव में है शायद। उसमें उन्होंने कल पूरा लिखा है, वो पढ़ रहा था। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ के हैं, लड़कियाँ हैं सिर्फ, वीमेन यूनिवर्सिटी है। तो अफ़गानिस्तान में इतनी लड़ाई हुई है तो तमाम लड़कियां ऐसी हैं जो मतलब ऑर्फन हैं, वो सारी वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा ईस्ट तिमोर के स्टूडेंट्स हैं। ईस्ट तिमोर जानता है कोई? तुम बताओ क्या नाम है? अरे फंस गई यहाँ पे। अच्छा, ये ये इंडोनेशिया का अभी कुछ साल पहले इंडोनेशिया वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। हाँ, नहीं, इंडोनेशिया। तो ये इंडोनेशिया का अलग हुआ पार्ट है जो इंडिपेंडेंट देश बन गया, ठीक है। तो वहाँ के तो तरह अलग अलग जगह के स्टूडेंट्स हैं जिनको वो पढ़ा रहे थे, वो इन्होंने लिखा। अब ये हसीना जैसे किसी का रूल होगा कि शासन होगा तो ऐसा पढ़ाई होगी, जहाँ 4 देशों 5 देशों के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो लड़कियाँ ऑर्फन्स हैं, वो अलग रिलीजन, अलग कम्युनिटी, अलग देश की हैं, उनको आज सबको पढ़ा रहे हैं। खालिदा जिया का रूल होगा तो ये नहीं होगा, ऐसे समझ लो। तो ये थॉट में इस तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो जो पारुल मैम ने सवाल किया, तो अगर इंडिया में कोई लिखता है, जो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो सब लोग सेंसिबल लिख रहे हैं, सोशल मीडिया की प्रॉब्लम है। तो अगर कोई ये लिखता है कि वहाँ हिंदुओं को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है और उनकी हत्याएं हो रही हैं या मंदिरों पे अटैक हो रहा है, तो ठीक है, समझ में आता है। बट इफ़ यू आर क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोवोकेटिव वीडियोज़ जिसमें ज़्यादातर फेक है, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं, सारे तक मैं भी किसी को भेज के उसको चेक करवाऊंगा, सारे ज़्यादातर फेक। कोई एक विजुअल लिया, 4 पुराने लगाए और बना दिया। नाउ दिस इज़, ये इंडिया में भी वैसे एलिमेंट है, ये वही खालिदा जिया वाले लोग हैं जो बांग्लादेश में खालिदा जिया वाली मानसिकता है, वही इंडिया में। अगर आप इस बात से परेशान हैं, इंडिया के हिंदू जो हिंदू ढंग से सोचते हैं कि वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है? क्योंकि वो माइनॉरिटी में, मुस्लिम मेजॉरिटी में। नाउ पुट इट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ मेजॉरिटी फिर जब माइनॉरिटी के साथ गड़बड़ करती है तब भी बोलिए आप, तो ये सेलेक्टिव नहीं चलेगा, ये थॉट की बात है। अगर माइनॉरिटीज शुड गेट प्रोटेक्शन, दे शुड गेट प्रोटेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप कन्वीनियंस है, जहाँ आप मेजॉरिटी में तो आप अपने रूल बना लें, जहाँ आप माइनॉरिटी में वहाँ रूल बदल दें, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो ये बेसिक, लेकिन फिर भी अभी बांग्लादेश में नो डाउट बहुत सारे अनफॉर्चुनेट चीज़ें हुई हैं, बट बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, क्योंकि 15-20 साल का जो एक सेकुलर ट्रेडिशन बना दिया शेख हसीना ने, उसकी वजह से वो सोसाइटी उस तरह की है जहाँ पर सोसाइटी में जहाँ भी हिंदूज़ माइनॉरिटी में सब ने मुस्लिम से प्रोटेक्शन दिया है, और सैकड़ों इस तरह के इंसिडेंट हुए। तो जब इंडिया में भी अगर कोई लिखता है तो इन इंसिडेंट्स के भी बारे में लिखो ना, तो एक गुडविल बनेगी। नहीं तो क्या होगा, आप लगातार हिंदुओं पे अत्याचार के यहाँ वीडियो चलाएंगे, फेक वीडियो, तो यहाँ हिंदुओं का फिर खून वाल मारेगा, फिर वो यहाँ के माइनॉरिटी को मारेंगे, तो ये तो फिर सेम फ्रेंजी होगी ना, विच इज़ हैपनिंग इन बांग्लादेश। फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस देन? तो इसलिए लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप एक सेन तरीके से लिखते हैं, एक रैशनल तरीके से लिखते हैं। वो भी उन्होंने भी लिखा है। अब वो वहाँ से जिनका मैं प्रोफेसर का बता रहा था, वो अपने देश की तारीफ़ कर रहे थे, ठीक है, हर एक को अपने देश की तारीफ़ करनी चाहिए कि हम देखो हमारा देश कितना अच्छा है, वहाँ कितनी प्रॉब्लम आई। उसके साथ साथ वो ये भी लिख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के सारी अथॉरिटीज़ ने उनको कितनी हेल्प की, किस तरह से उनको वहाँ से बाहर निकाला, किस तरह से उनको एयरपोर्ट पहुँचाया। इसका मतलब देयर आर गुड पीपल देयर।
तो आप पूरे देश को थोड़ी रिजेक्ट कर सकते। और वैसे दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग बांग्लादेश फॉर द लास्ट 40-50 ईयर्स, ईच एंड एवरी डेवलपमेंट इज़ इन माई माइंड 1970 से अभी तक। एंड लास्ट ईयर वी हैड गॉन टू बांग्लादेश, जो हम लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं ICAN, तो जो हम लोग ICAN कॉन्फ्रेंस करते हैं, लास्ट ईयर हमने ढाका की यूनिवर्सिटी है, डैफोडिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उनके साथ हमने कोलैबोरेशन किया था, और उन्होंने हमारा फाइनल लेग ऑफ द कॉन्फ्रेंस दे होस्टेड इन ढाका। तो हम लोग 4 दिन तक ढाका में थे, सेम डेट्स 4, 5, 6, 7, 8 अगस्त। सो देन आई हैव सीन जो बांग्लादेश का मेन स्ट्रीम है वो बहुत अच्छे लोग हैं। ये जो दिख रहे हैं सड़कों पे, दे आर हैंडफुल, मे बी 1000, मे बी 2000, मे बी 10,000, मे बी 50,000, दैट्स इट। ये मेन स्ट्रीम नहीं है, लेकिन ये सब आ गए मौके का फ़ायदा उठा के सड़क पे, एंड देन दे क्रिएटेड एक सिचुएशन विच द गवर्नमेंट कुड नॉट हैंडल। और इंडिया से थोड़ा सा अलग है, छोटा देश है, छोटा देश पॉपुलेशन में नहीं, पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, साइज़ में छोटा है, और 4-5 शहर हैं गिन के, और हालांकि 5 शहरों में इंडिया का कॉन्सुलेट है, तो इंडिया की प्रेजेंस पूरे देश में है, बांग्लादेश में है। छोटा देश है, और ढाका भी छोटा ही है, मतलब एक्सपेंशन तो हुआ है बट छोटा है। और वहाँ पे हम लोग तो देख के आए थे, मदर सर वॉज ऑल्सो देयर, वहाँ की पार्लियामेंट, शेख हसीना का घर, ये सब इतने आस पास हैं कि ऐसा नहीं है कि आप धीरे से गए और एयरपोर्ट से निकल गए, और सारा हर समय जाम रहता है, तो कोई निकल भी नहीं सकता अगर सड़कों पे लोग हैं तो। सो दैट इज़ हाउ सीधा उसको, उसकी लाइफ को ऊपर रिस्क था। हाँ, तो जो उनका म्यूज़ियम है, जहाँ पूरी फैमिली की हत्या हुई थी, हम लोग उसके पास में ही रुके थे दाल मंडी में, तो वो भी हमने देखा। तो एस्केप करने का कोई रास्ता नहीं है। तो जो लोग कह रहे हैं भाग गए, अगर एस्केप नहीं करती, देन एवरीबडी वुड हैव बीन किल्ड इन हर फैमिली, फिर बचने का कोई चांस नहीं था। तो एस्केप यही तरीका था कि निकले। अब उसको भागना कहें जो भी कहें, और अगर उसकी हत्या होती, नॉट दैट कि वो हर आदमी अपनी हत्या से तो बचेगा ना, तो नॉट दैट कि उसका एसेसिनेशन होता, बट उसका जो आफ्टर माथ था, फिर सिविल वॉर होती, क्योंकि जो अवामी लीग के सपोर्टर्स हैं वो भी सड़क पे आ जाते, एंड देन देयर वुड हैव बीन ए डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन द पीपल ऑफ बोथ लाइन्स ऑफ थॉट्स, फिर आर्मी भी नहीं कंट्रोल कर पाती उसको। तो शी टुक ए वेरी वाइज स्टेप, शी सेव्ड द कंट्री at the right moment. Not only she saved herself, she saved the entire country by taking a wise decision at the right moment. वो 3-4 घंटे में ही डिसीजन लेके निकल गई वो तो। नहीं, अब सवाल नहीं रह गए। सवाल तो कभी ख़त्म ही नहीं होने चाहिए। So thank you so much for having this session with us. Thank you so much for giving us the information that most of us did not have previously had access to. It's been a very enlightening session, and I was honored, frankly, to be here and to listen to you speak about the complex socioeconomic and international matters of Bangladesh and India. And I don't have any questions. I'm just really, I would like to have a discussion further with you though, because I think that I have a lot to learn, and you are an excellent mentor to provide us with this opportunity. Thank you.